Trinamool Congress have been sitting on a 12-hour dharna. We started at midnight. Our dharna will go on till 12 noon. We are sitting in dharna because of the manner in which the Narega Act has been destroyed by the Modi government, and it has been replaced by the VB-GRG bill, but it was brought in just 5 hours before it was the government. It was given to us just 5 hours before the government introduced it in the House. The Modi government is using bulldozer tactics to push through legislation. It is treating Parliament in a cavalier manner. It is not allowing any consultation with opposition parties. It is not holding meetings with opposition parties. You are just coming into Parliament and pushing through force, through bulldozer tactics, these bills. Such an important bill like the Manrega bill, all we were asking is send it to a select committee because it needs discussion. The Manrega Act was giving employment to the rural poor, to the rural workers. Therefore, by destroying this bill, the government has attacked the rural poor, it has attacked the rural workers, and it has insulted Mahatma Gandhi. It has assassinated Mahatma Gandhi for the second time. The Modi government has assassinated Mahatma Gandhi for the second time, and it has also insulted Rabindranath Tagore, because as you know, it was Rabindranath Tagore who first bestowed the honorific Mahatma on Gandhiji. So it is an attack on the rural poor, attack on rural workers. It is an attack on Mahatma Gandhi. It is an attack on Rabindranath Tagore. You are treating Parliament in an unconstitutional, undemocratic, dictatorial manner, just coming and bulldozing bills. In the last 2 days, you have pushed through 4 bills without giving time for discussion, without giving time for any kind of consultation. This kind of neglect and contempt of Parliament is unacceptable to us. We are sitting on dharna to protest against the Modi government, the manner in which it has destroyed the Narega. It has insulted Mahatma Gandhi, insulted Rabindranath Tagore, and trying to destroy parliamentary democracy. ये 12 घंटा का धरना है। हमने कल रात मध्य रात को शुरू किया था। आज 12 बजे हम इस धरना को खत्म करेंगे। हम इसलिए धरना दे रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया, जिस तरह से ये काला कानून लाया गया है, ये VB-GRG बिल, और जिस तरह से नरेगा को खत्म कर दिया गया है, जिस तरह से महात्मा गांधी को अपमानित किया है मोदी सरकार ने, रविंद्रनाथ टैगोर को अपमानित किया है, और जबरदस्ती करके जिस तरह से बिल्स को बुलडोज कर रहे हैं संसद में, ये बहुत ही ये लोकतंत्र की हत्या है, ये संसदीय लोकतंत्र की हत्या है, और इसके विरोध में हम धरना दे रहे हैं। उसके विरोध में जी राम जी बिल के विरोध में वही लोग विरोध करेंगे जिन्हें मजदूरों से लेना देना नहीं है, केवल राजनीति करना है। 100 दिन के बदले 125 दिन करना क्या गलत है? ये मजदूरों के हित के लिए है, और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो मजदूरों के दुश्मन हैं। ये 12 घंटे के प्रोटेस्ट में बैठ गए हैं। 12 घंटे नहीं, 12 दिन के पर बैठ जाए, लेकिन ये मजदूरों के हित के लिए हुआ है। अब बांग्लादेश के जिस तरह के हालात आप देख रहे हैं कि लगातार उनके लीडर की भी एक हत्या हुई है, किस तरह से क्या कहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भारत के तमाम राजनीतिक दलों को इस पर चिंता करनी चाहिए।
कैसे देखते हैं? टीएमसी प्रोटेस्ट करी रात भर, बट कैसे देखते हैं? देखिए 1948 में इनके पितृ संगठन ने गांधी जी की हत्या की और कल 18, 12, 24, वही 25 को मोदी जी की सरकार ने गांधी जी के नाम की हत्या की है। और ये इसलिए उन्होंने हत्या की है कि वो सारी चीज़ें गांधी जी के नाम के साथ साथ नेहरू जी का जो नाम आए, इनको कहीं न कहीं उनके नाम से एक जैसे एलर्जी है, मैं कह सकता हूँ, वो नाम वो हटाना चाहते हैं। और इसका बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि मैंने कहा कि एक क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल वाले फेज में इनकी भूमिका बहुत ही नकारात्मक रही है, वो एक कारण है। दूसरी बात मैं कह सकता हूँ कि ये पूरी की पूरी चीज़ें ग्रामीण अर्थव्यवस्था इस पर काफ़ी निर्भर करती थी। और इन्होंने फिर वो 60 दिन का जो अलग से जो कृषि के समय का वो उन्होंने अलग कर रखा है। कर्ज का जिसे एक तो ऐसे भी राज्य जीएसटी वाले में ये पे काफ़ी परेशान हैं और आज उन पे करीब 40% उन पे भार पड़ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं समझता हूँ कि नकारात्मक चीज़ें हैं। सरकार चाहती, अगर मान लीजिए सरकार चाहती तो बहुत सारे जो कमियां, अगर उन्हें लगता है कुछ चीज़ें हम जोड़ सकते थे लेबर के ये में, ग्राम में कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर, तो वो जोड़ सकती थी। लेकिन मैंने कहा गांधी जी का नाम का हटाना था, ये काम किए। ये अलग बात है कि पुतिन भी आएंगे तो राजघाट जाएंगे, ये स्वयं मोदी जी जब प्रधानमंत्री जी बाहर जाएंगे तो गांधी जी के सारे करीब 136 देशों में उनके स्टैच्यू लगी हुई है। तो ये गांधी जी को आप उनके नाम को आप हटा नहीं सकते हैं ना, ये तो हमारे ये रगों में है। दूसरी बात ये हम जरूर कहना चाहेंगे कि ये जिस प्रकार की चीज़ें, ये पूरे इतिहास को, इतिहास गढ़ तो नहीं रहे, इतिहास बदलने का ये प्रयास कर रहे हैं। खड़गे जी ने भी वार्न किया है कि प्रोटेस्ट होंगे। केंद्र को बोला कि अगर मनरेगा को जैसे रिप्लेस किया गया है विकसित भारत जी राम जी बिल से, कांग्रेस से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं आगे? क्योंकि खड़गे जी ने तो बोला है कि प्रोटेस्ट की भी वार्निंग टाइप। देखिए हमारे 27 तारीख को CWC की मीटिंग है और उसमें जो निर्णय आएगा, जो निर्देश होगा, हम करेंगे। और मैंने कहा कि इस प्रकार जो बापू जी का अपमान करना, गांधी जी का अपमान करना, ये मैं समझता पूरे देश इन चीज़ों को देख रही कि हम अपने महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं और ये इनकी प्रवृत्ति बन गई है। बात कर लेते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। वहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं जब से एक उनके लीडर हैं उस्मान हादी की डेथ हुई है। अवामी लीग के ऑफिस को भी जला दिया। हमारी एम्बेसीज, हमारे हाई कमीशन पे भी इन्होंने मार्च निकाला। और जो असिस्टेंट कमिश्नर, इंडियन असिस्टेंट हाई कमिश्नर है चिटागोंग में, उसकी वहाँ पे भी प्रोटेस्ट दिखा है। जिस तरीके से ये हालात बने हुए हैं, जो स्थिति बनी हुई है हमारे पड़ोसी मुल्क में, आप कैसे देखते हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि आप देखें सराउंडिंग्स पूरे पड़ोसी देशों में देखें तो रेडिकल्स जो हैं वो काफ़ी, मैं समझता हूँ, आक्रामक हो गए हैं, या फिर उस तरीके से उनके जो चीज़ें हैं, जो प्रदर्शन है वो या बातें उनमें आई हैं, ये हमारे लिए पूरे, मैं समझता हूँ, महादेश के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। इंडिया के संबंध पूरे राज्यों से, चाहे वहाँ बांग्लादेश हो, नेपाल हो, लंका हो, पहले काफ़ी अच्छे हुए करते थे। तो कहीं ना कहीं मैं जरूर कहूँगा कूटनीतिक रूप से पुनः मैं समझता हूँ उन स्थिति को बहाल करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, दो टूक बातें होनी चाहिए। और एक है शक्ति, जो है शक्ति से ही शांति आती है, वो हमें हमारी जो नीति है वो जरूर है स्पष्ट करनी चाहिए और बातें दो टूक आनी चाहिए। केवल आप उनको बुला के, उनके राजदूत को बुला के नहीं, कार्रवाई भी उसी ढंग से होनी चाहिए। पोल्यूशन के ऊपर काफ़ी बातें हो रही थी। हम दिल्ली में हैं और पोल्यूशन की स्थिति काफ़ी बदतर बनी हुई है, मगर पोल्यूशन के बारे में कोई डिबेट ही नहीं हुई है लोकसभा में। और अपोजिशन ब्लेम करता है कि दिल्ली जिस तरीके से चोक कर दिया गया है। मैं उम्मीद कर रहा था कि पॉल्यूशन पे सरकार के एक जवाब आएंगे, चर्चा उसमें आएंगी। केवल चर्चा की बात नहीं, मैंने महत्वपूर्ण बिंदु बहुत सारे हैं, बहुत सारे सुझाव आते हैं माननीय सदस्यों का। तो जो बेहतर होगा राज्य के लिए, देश के लिए जो बेहतर होगा, यहाँ के लोगों के लिए जो बेहतर होगा, उन चीज़ों को सरकार को लागू करना चाहिए। और दो चीज़ें हैं, एक तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ साथ मैं समझता हूँ कि उन चीज़ों को एक बहुत सारी चीज़ मैंडेटरी भी है। मैं समझता हूँ लंदन में बहुत सारा देखा जो हैवी ट्रैफिक वाली है, कंजेशन टैक्स वगैरह लगता है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये जो पॉल्यूशन वाले हैं वो आपदा नहीं है, वो हमारे और आपके द्वारा बनाए गए, मैं समझता हूँ ये बहुत ही कृत्रिमता से चीज़ें हैं कि हमने वो क्रिएट किया है, हमारे कारण हो रहा है। तो चीज़ों को मैं समझता हूँ कि एक पूरे सामूहिक तौर पे
हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन मैंने कहा सरकार को इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए। और सरकार इतनी उदासीन है कि राहुल जी लीडर ऑफ अपोजिशन ने इन बातों को कहा कि हम एक रोड मैप बनाएं, उसके बारे में सरकार मौन हो जाती है। सर, आपने एक संसद के क्योंकि आपने एक प्रश्न रखा है और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी बात रखी है, क्या है ये प्रश्न और क्या आप इससे रेस करना चाहते हैं? देखिए, एक महत्वपूर्ण है कि जो सरकार ने जब विधेयक ला के नाम चेंज किया न्याय संहिता, तो न्याय संहिता सबको सुलभ हो, ये हम जरूर चाहेंगे। लेकिन मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि तकरीबन 76% जो है 76% जो प्रिजनर्स हैं वो आज भी बिना ट्रायल के वह है। और सबसे दुखद स्थिति कि 18 से 35 साल के उम्र के युवा उसमें काफ़ी हैं। और जो मार्जिनाइज सेक्शन के लोग हैं, SC हैं, ST हैं, जो वैसे वीकर सेक्शन है, उनकी संख्या काफ़ी तादाद में है। तो इन सब चीज़ों को मैं समझता हूँ कि आज एक सरकार का जवाब आएगा और सरकार क्या कदम उठा रही इनको करने के लिए, ये मैं समझता हूँ। इसके बारे में सरकार से आज उम्मीद हम करते हैं सरकार इन बातों को जवाब दे। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, जिस तरीके से नीतीश कुमार का जो हिजाब हटाने वाला जो कंट्रोवर्सी हुई, अब उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर मुस्लिम इंसान ने, मुस्लिम व्यक्ति ने अगर हिंदू महिला का अगर वो व्हील या जो हम कहते हैं वो हटाया होता तो क्या होता, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अपॉलॉजी करनी चाहिए नीतीश कुमार को। मैंने कहा दो चीज़ें बहुत दुखद है। नीतीश कुमार जी ने जो चीज़ें आई है, अगर किसी को कष्ट हुआ है, दुख हुआ है और आपके कृत्य से, क्योंकि आप एक बहुत बड़े पद पे है, तो सबसे पहले तो उन्हें मैं समझता हूँ कि माफ़ी मांगनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उससे दुखद स्थिति गिरिराज सिंह जी के बयान आते हैं, निषाद जी के बयान आते हैं। तो क्या मोदी जी के पूरी टीम इनके सरकार में महिलाओं की सुरक्षा केवल एक मजाक बन गया है क्या? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाली बातें केवल नारे हैं क्या? तो एक मानसिकता झलकती है। इसलिए मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें और ये हिजाब जो है एक महिला के सम्मान के साथ साथ एक मैं समझता हूँ उनकी परंपरा, उनकी आस्था के साथ चीज़ें जुड़ी हुई है। और उससे किसी प्रकार के, जिसे कहा जाए मजाक या इस प्रकार के कृत्य जो है वो हमेशा निंदनीय है।